ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کا شکر و احسان جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس پاک بزم کے اندر جمع و اکٹھا ہیں. یقیناً ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ مجلس اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اور ہمارا سامعین اور ناظرین اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کے لیے جمع اکٹھا ہوئے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں حق بات کہنے حق بات سننے اور اس پر عمل کی تو توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین. گزشتہ ہفتے درس میں حالانکہ پچھلے ہفتے کا درس فرائیڈے جمعہ کو ہوا تھا سورۃ النساء کی ابتدا ہوئی اور آیت نمبر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے حتی الامکان رکھا گیا. سرسری طور پر مختصراً ہم اس آیت کے تعلق سے جان لیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں علت اور حرمت کے تعلق سے، بالخصوص خواتین کے تعلق سے. اور اس میں وراثت کا بھی مسئلہ بیان کیا گیا کیونکہ وراثت صرف ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ خاص ہے. تو اس کے بارے میں بھی چند آیات کا تذکرہ کیا گیا. اس سے پہلے کی آیات میں یہ بات گزشتہ ہفتے گزر چکی ہیں نکاح کے متعلق کہ ایک مرد جو ہے زیادہ سے زیادہ بیک وقت کا معنی یاد رکھے ایک ساتھ 4 بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. یعنی چاروں زندہ ہو حیات میں ایک ساتھ 5 نہیں رکھ سکتا. بعد لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا مطلب کہ ایک ساتھ رکھے یا ایک ایک کر کے کرے 4 ہی کرے. یہ معنی نہیں. ایک ساتھ بیک وقت مطلب ایک ساتھ ایک مرد 4 بیوی کو رکھ سکتا ہے. اور اگر چاروں میں سے کوئی ایک طلاق لے لے یا خلا لے لے یا انتقال کر جائے تو پھر ایک کر لے 5 کر لے 10 کر لے لیکن ایک ساتھ 4 سے زیادہ نہیں. اس میں ایک ڈاؤٹ جو پچھلے ہفتے میں بیان کرنا بھول گیا تھا کہ جو خواتین درس میں رہتی ہیں آن لائن ان کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہوگا. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے لیکن پوچھ نہیں پاتا ہے. شرم حیا کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور مسئلے مسائل میں اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے یا چاہت بھی نہیں ہوتی ہے اتنا شوق بھی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی پوچھے. سوال یہ ایک چھوٹ گیا کہ آخر ایسا اسلام نے کیوں کیا. کہیں جیسے مغرب کی طرف سے یہ آواز آتی ہے ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ مردوں کی عیاشی کا ایک ذریعہ نعوذ باللہ من ذالک. اسلام عیاشی کا ایک درس دیتا ہے کہ مرد جو ہے 4 بیوی رکھے عورت نہ رکھے جبکہ اسلام برابری اور مساوات کی بات کرتا ہے کہ یہاں برابری کہاں گئی. حالانکہ ایسی ہی باتیں گردش کرتی ہیں ہمارے سماج کے اندر. حقیقت کیا ہے کہ یہ صرف بات مغرب کی نہیں ہے، یہ بات ہر جگہ کی ہے کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو سنی سنائی چیزوں کو ہم اس کو بالکل اٹوٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ چیزیں حقیقت بھی ہے. جیسے ایک سوال آپ کے پاس بھی آتا ہوگا، یہ ایسا نہیں کہ صرف عالمین کے پاس آتا ہے کہ سوال اکثر یہ آتا ہے کہ امام صاحب اگر اپنے منہ سے ہم سور کا نام لے لیں تو کیا 40 دن ناپاک رہیں گے، ہماری زبان ناپاک رہے گی. اکثر یہ سوال آتا ہے کیونکہ علاقے میں معاشرے میں سماج میں یہ چیزیں عام ہیں، عام سا سوال ہے، گردش کرتے رہتے ہیں.
تو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوال کیسے کیسے سوال ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سارے زبانیں ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لینگویج کو پیدا کیا ہے. اگر ہم اپنے ملک کی بات ہندوستان کی کریں تو ہندوستان میں نہ جانے 1000 سے اوپر زبانیں ہیں، مختلف علاقے کی مختلف زبانیں ہیں. تو اب جیسے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اگر منہ سے سور کا نام لے رہے ہیں تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. اردو میں ہم سور بولتے ہیں، اسی کو عربی میں خنزیر کہا جاتا ہے نا، عربی میں خنزیر، اور انگلش میں شاید پگ بولتے ہیں، پگ بولتے ہیں. تو ہر زبان میں الگ الگ لفظ ہے. اب قرآن پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 173 تو ہے نا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو، دم خون بہا ہوا خون کو، لحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ، اور جو کوئی بھی چیز پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام کیا گیا. جو لفظ ہے لحم الخنزیر، سور کا گوشت، اگر سور کہنے سے زبان یا انسان ناپاک رہے گا تو قرآن میں کیوں اللہ نے ذکر کر دیا؟ سور تو اردو لفظ ہے، جو جس کی زبان عربی ہے ان کے لیے خنزیر سور ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے؟ ہے نا، تو تلاوت میں بھی ہے ریسائٹ میں. تو ایسی کی بات ہے. اسی طریقے سے مغرب والے کیا کہتے ہیں کہ مسلم خواتین کو، وہ خواتین ہماری بہنیں جو اسلام کی تعلیم سے بہت دور ہے، اس طرح کی چیزوں پر ان کو مائنڈ واش جس کو کہتے ہیں، ان کے ذہن کو جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں واش کیا جاتا ہے کہ کیسے ان کو اسلام کے خلاف کر دیا ہے نا. تو جو سوال پوچھے گئے چھوٹ گیا تھا کہ کہیں یہ زیادتی تو نہیں عورتوں کے ساتھ، اور خاص کر دیکھیے جو دماغ میں جو خواتین کی بات آتی ہے کہ کہیں ہم فیکنگ کی چیز نہیں ہے، بس 4 حکمت ہے جو ساری کرتی چلا جائے، بچے پیدا کرتا جائے چلا جائے، ہم کیا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے نا. آج تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ایک ایسا نیریٹو بنائے ہوئے ہیں. جبکہ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اسلام نے مرد کے جوزیت میں بیک وقت 4 بیوی کا حکم دیا ہے. پہلے آپ اس کی تفصیل کو سمجھیں. ایسا نہیں کہ ہم لوگ سب مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیوی ہے جا کے دوسری شادی کر لی ہے، پھر تیسری کر لی، ایسا نہیں ہے. جو آیت گزری ہے اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. یہ لفظ ہم لوگ مس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو. 4 کا ذکر نہیں ہے، 2 ہی بیوی ہیں، اور خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو تمہارے لیے ایک بہتر ہے نا. صاف قرآن نے کہا ہے. یعنی دیکھیں کہ یہ جو ذہن میں ہماری بہنوں کے اگر آ رہا ہوگا تو ہم اپنے ذہن کی تزئین کاری کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ گری پڑی چیز ہے، بس کوئی جائے جا کے شادی کر لے، نکاح میں لائے، استعمال کرے، یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہو، بچے پیدا کرے، مشین بنا لے. ایسا کچھ نہیں میری بہن. اسلام میں آپ کو بہت اعلیٰ اور اونچا مقام دیا ہوا ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے نا. اللہ نے صاف کہا کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی کوئی مرد رکھنا چاہتا ہے مسلمان تو اس کو عدل کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا. وہ حقوق جو اپنی پہلی بیوی کو دے رہا ہے سارے حقوق اپنی دوسری بیوی کو دے رہا ہے. اور یہ بھی اسلام نے کہا کہ خفتم میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ انسانی فطرت جو ہے آٹومیٹک کسی ایک طرف مائل ہو جاتی ہے. جیسے ہم لوگ مثال کے طور پر لے ہیں کہ ہم لوگ سب کے پیرنٹس سے ماں باپ ہیں ہے نا. کوئی لڑکا یا بیٹا یا بیٹی نہیں کہہ سکتا کہ اپنے ماں اور باپ سے برابر محبت کرے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اکثر بچوں کا ماں اور باپ میں سے کسی ایک کی طرف جھکاؤ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور کسی کی طرف کچھ کم ہوتا ہے نا. یہ فطری چیز ہے. ہم لوگ اگر بچوں میں اولاد میں اگر لڑکوں کی بات کی جائے تو لڑکے اپنے ابا سے کوئی بات کہنے بہت ڈرتے ہیں، تو ہم لوگ کا جھکاؤ زیادہ ماں کی طرف رہتا ہے. لڑکیوں کی اگر بات کری جائے تو لڑکی اپنی ماں سے کوئی بات بولنے میں ڈرتی ہے، باپ سے اتنا اچھا بولتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو. عدل کا لفظ استعمال ہوا، مساوات کا لفظ نہیں آیا، برابری کا لفظ نہیں آیا، حقوق کا لفظ نہیں آیا. وَإِنْ خِفْتُمْ کہ تم کو حق نہ دے سکو، نہیں ایسا نہیں ہے. عدل کی بات آئی. تو آپ اپنے ذہن کو پہلے صحیح کریں کہ اسلام نے مردوں کو ایک ساتھ 4 بیوی رکھنے کے لیے 2 یا 3
रखने का हुक्म दिया है, उसके लिए पहली शर्त यह है कि आप पहले ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर तैयार हो जाए कि हम इंसाफ करेंगे। ये नहीं कि अभी निकाह करना है तो सोचें हाँ निकाह के बाद मुकर जाए, ऐसा नहीं। अगर मुकरेंगे तो अल्लाह हमारी पकड़ करेगा। दूसरी चीज ये है कि आखिर मर्द कर सकते हैं 4 बीवी रखे तो औरत भी रख सकती, ये भी सवाल है। वो क्यों रख सकते? उनके लिए वही हुक्म आता कि कोई भी लड़की अगर अदल करेगी तो एक से ज्यादा शौहर रख सकती है ना। ये भी उस ज़हन में होगा कि ये चीज़ हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया। तो इसके लिए भी बहुत आसान तरीका समझने का यही है कि आप देखिए, इस्लाम की अगर बात भी हटा दें, सिर्फ हम दुनियादारी की बात करें तो हम लोग जब पैदा हुए या जो बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहला एक कागज़ बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ बनता है। तो आप देखिए कि जब डेट ऑफ बर्थ बनता है तो जिस माँ से बच्चा पैदा हुआ है उस माँ का रिकॉर्ड लिया जाता है और उसके बाप का रिकॉर्ड लिया जाता है। माँ और बाप का नाम मेंशन रहता है सर्टिफिकेट के ऊपर, है कि नहीं। अगर एक औरत 4 हस्बैंड रख रही है, 2 ही रख रही है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके पेट में जो बच्चा है किस हस्बैंड से, कैसे पता चलेगा? आज ना डीएनए है, कल तो नहीं था, 100 साल पहले 200 साल पहले नहीं था। और ये हुक्म आज का नहीं है, पहले का है ना। अगर एक औरत 4 मर्द रखती है तो एक नहीं कई नुकसान है। पहला नुकसान क्या है? अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, अल्लाह ने कुरान में कहा कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों के ऊपर बरतरी दी है, हर एतबार से, ताकत के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, पावर के एतबार से। आप ये समझ लें कि अगर मान लीजिए कि एक औरत है और उसके 4 शौहर हैं और चारों शौहर का मिजाज बन गया आज हम बिस्तरी करने का, ये नुकता क्यों भूल जाते हैं? समझा रही है? चारों शौहर का आज ही मिजाज बना हुआ है, तो क्या ये ज्यादती नहीं होगी उस औरत के साथ? ज्यादती होगी कि नहीं होगी? तो ये समझना होगा, डीप जाना होगा। इसीलिए अगर किसी बहन या किसी माँ के ज़हन में बात आ रही है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप समझिए कि आप अगर वो औरत हमल से होगी तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसके पेट में जो बच्चा है उसके बच्चे का बाप क्या है ना। बहरहाल आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन निसा आयत नंबर 4 से तर्जुमा तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महर के बारे में बयान किया। महर जानते हैं क्या होता है? जब निकाह होता है लड़का और लड़की के दरमियान, तो निकाह में इस्लाम ने एक देखिए औरत के साथ कितना अच्छा सलूक किया इस्लाम ने कि एक महर का कंसेप्ट रखा जो इससे पहले किसी अध्ययन में, किसी दिन में नहीं था। वो महर क्या है? जिसको वो कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक लड़की है, अनजान एक लड़के के लिए, अब दोनों में निकाह हो रहा है, अब वो लड़की उस लड़की के लिए हराम होगी, तो इस्लाम ने उस लड़की की इज्जत को दुबारा किया कि भाई आप जिससे निकाह आपका होगा वो आपकी हुकूक की अदायगी शुरू से करे। मतलब अभी स्टार्टिंग दे दी अल्लाह ने, जैसे आप उसके घर में एंट्री की, पहला हक आपको ये मिलेगा आपका महर, बगैर महर के तो निकाह ही नहीं। इतना तक इस्लाम ने औरत का मकाम ऊंचा और बुलंद किया है। और अल्लाह के रसूल के ज़माने में ऐसा भी हुआ है कि बाद सहाबा इतने गरीब थे और निकाह की जब बात आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कहा, गालिबन बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि खजूर का जो बीज होता है ना, खजूर का बीज, उस बीज के बराबर सोना जो है आप महर में देगा। खजूर का बीज कितना छोटा होता है, अगर सोना ले जाए तो मुश्किल से आपको लगता है कि 1 या 1.5 ग्राम होगा। अब उतना सोना अगर खरीदेंगे तो 5,000 में आज के ज़माने में हो जाएगा, उम्मीद है। उतना भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप महर देकर निकाह कर लो। तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसकी भी ताकत नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें कुरान याद है? तो सहाबी रसूल से जिनका निकाह होने वाला था उन्होंने कहा कि हाँ हमें याद है। तो तुम अपनी बीवी को कुछ सूरत याद करवा दो, वही तुम्हारा महर है। लेकिन महर होगा, महर होगा, बगैर महर के निकाह नहीं होगा। और महर का तय करने से पहले नियत भी देने की होनी चाहिए। सिर्फ तय करना कागजी फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए जो आज से पहले तो चलते आ रहा है। पिछले हफ्ते बात गुजरी थी कि हम लोगों के वालिद वगैरह की उम्र के लोग पहुंच गए हैं और महर आज तक अदा नहीं हुआ। उनके बेटा शादी करके अपने बीवी को दे दिया है ना, बेटा बहू को दे दिया, आप अभी तक माँ को नहीं दे पाए हैं, है कि नहीं सर? प्रैक्टिकल बात है। तो महर को कागजाती कार्रवाई नहीं रखना है। खाना पूरी जिसको कहते हैं कि नहीं, वहाँ एक फॉर्म में वहाँ पे एक जगह दिया गया है, खाना है, उसको भरना है तो लिख दो, देना थोड़ा ना है।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब महर के बारे में देखिए, अल्लाह ने कहा सूरह निसा आयत नंबर 4 में, व आतुन निसा सदकातिहिन्ना निहलतन, और तुम अपनी औरतों को यानी अपनी बीवियों को उनके महर राजी और खुशी दे दो। निहलतन राजी और खुशी दे दो। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह नहीं ने कहा कि मजबूर होकर दे दो, वो पैर नहीं तो दे दो, लेकिन निकाल के दे दो, पकड़ो। तो शादी नहीं किया, आफत कर दिया। अरे देंगे बोले ना, है तो पैर दे दो। आज तनख्वाह मिला, अगला महीना और फरवरी चला गया, फिर अगस्त आ गया, फिर दिसंबर चला गया, दे दो, अल्लाह को पकड़ो, आमद बनना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निहलतन का माना होता है राजी खुशी दे। तुम अपनी औरतों के जो महर है, अपनी बीवियों का महर राजी खुशी दो। तो हमें कुरान की एक एक आयत को बगौर समझना है, सिर्फ आगे नहीं बढ़ना। एक होता है महर दे दो, तो आज भी देंगे और 10 साल के बाद भी देंगे, देना है। एक होता है कि राजी खुशी दे दो। अब जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि हम लोग के अब्बा वगैरह क्या है, जैसे कारखाना वगैरह में काम करते थे, कुल्टी कारखाना हुआ, या हम लोग तरफ जाएंगे तो जूट मिल वगैरह होता था। तो शादी के बाद हस्बैंड अपनी बीवी से कहता था कि जब रिटायर होंगे तो सर्विस में दे देंगे। सर्विस का सोना का सिक्का थोड़ा देगा, पैसा तो वही रहे, है ना, सर्विस में से देंगे। या जो सरकारी ओहदे से जुड़े हुए थे, कहते थे हम भी जब रिटायर होंगे और जो कुछ हमको मुआवजा मिलेगा उसमें से हम देंगे। यानी उनको लगता था कि सर्विस में जो पैसा मिलने वाला है वो पद्मश्री मिलने वाला है या पद्मभूषण मिलने वाला है, वो उठा कर दे देंगे। लीजिए, अजीब और गरीब मतलब कि एक माहौल बनाया गया। और आपको जान से हैरानी होगी कि कम वेश अक्सर मुस्लिम इलाके में यही चल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे नौजवानों को पैदा किया, किसी समाज के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर ऐसे उलमा भी पैदा हुए जिन्होंने हक और हुकूक से रूबरू करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे से नौजवान हैं। मैंने कई ऐसा निकाह पढ़ाया कि नौजवान निकाह के बाद ही मेरे हाथ में दे दिया, इमाम साहब आप जाकर के आप गवाह रही, कल क़यामत में मैं आपको गवाह में पेश करूंगा कि अल्लाह देखिए मैंने अपने घर वाले को महर अदा कर। महर के बारे में भी क्या है, कुछ गलत फहमी क्या है कि महर हम बिस्तर से पहले देना है, ऐसा कुछ है नहीं। कोई टाइमिंग महर की नहीं है, बात समझ रहे ना, महर की कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग ये है कि जैसे इजाब कबूल हुआ आप उसको अदा करें, क्योंकि आप उसी बेस पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतने महर की बुनियाद पर फना लड़की को आपकी ज़ौजियत में दिया जा रहा है। अब जब निकाह कबूल होता है तो कुछ वर्ड पर ध्यान दें। फला वकील है, फला गवाह है, लड़की की तरफ से ये गवाह, लड़के की तरफ से ये गवाह और ये महर। इन तमाम साहिबान गवाहान महर की मौजूदगी में आपको फला लड़की को आपके निकाह में दिया जाता है ना। तो कुछ चीजें वहां पर अवेलेबल है, वकील वहां मौजूद है, काजी वहां मौजूद है, दोनों तरफ के गवाहान मौजूद है, सिर्फ महर मौजूद क्यों नहीं है? सवाल तो होना चाहिए। सब है अवेलेबल है, जब महर वहां मौजूद नहीं है तो काजी को भी हटा दिया जाए, वकील को भी हटा दिया जाए, गवाह को भी जाइए, हटा दिए, खाना पीना खाए खा के निकल दिया, हम लोग बाद में करें। ऐसा निकाह होगा? सोचिए। तो हकीकत को समझना होगा कि सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, महर क्यों नहीं? महर क्यों नहीं है जबकि उसकी बुनियाद पर निकाह हो रहा है? तो एक रूटीन बनाए, एक प्लानिंग बनाए कि नहीं अब जो हुआ सुबह ये हालत की बात थी, अल्लाह ताला माफ कर देता, रुपया अनुमति खता वन निस्यान, हम अपनी उम्मत से गलती भूल चुको उठा चुके, वो गलती थी, नहीं मालूम था, इल्म नहीं था। अब तो इल्म हो गया। मान लीजिए हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने महर नहीं दिया, लेकिन हमारे पास जब घर में कोई भी निकाह हो, चाहे हमारी बेटी बहन का हो और चाहे भाई बेटा का, हम भाई पहले पूछ सकते महर देना, भाई महर लेके चलो, तो कोई जब काजी के हाथ में देना है, घर का कोई आदमी ना दे। अब देखो निकाह हो गया है, निकाह पढ़ी हो गया, साइन वगैरह हो गया, ये लीजिए आपका महर लड़की के बाप के हाथ में दे दे और उनके बाप से चलिए आप मेरे सामने लीजिए। क्या ये गलत है? कुछ ना जाने कितने रस्म रिवाज हम कर ही रहे हैं। ये तो रस्म रिवाज नहीं बल्कि सुन्नत तरीका है। अल्लाह ने कहा तो अपनी बीवियों के महर राजी खुशी दे दो। अब एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है सदकातिहिन्ना, उनके महर। यहाँ पर महर के लिए सदका का लफ्ज है। सोचिए, महर के जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, आता यातू का माना होता है देना, वो आतू देना, निसा मतलब औरतें, इमरातुन औरत, निसा उसकी जमा थी औरतें, सदकातुन्ना उनके महर, मेहरतन राजी खुशी। मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा भी कर दिया, महर के अलग से कोई लफ्ज़ नहीं, सदकातिहिन्ना आया हुआ है।
अब इसको हम ये समझिए गलत कि सदका है, लो पकड़ो सदका। सदके की हमने बहुत से लोग ऐसे ऐसे हस्बैंड है जो महर को लेकर तंज करते हैं अपनी औरतों को। इसमें शुरू में कहा ना बहुत तगादा कर रहे हैं, ठीक है, अगले महीने देखे झमेला हटा, झमेला नहीं है भाई, वो अपना हक मांग रही है, उसी बेस पर वो राजी हुई है, उसी बेस पर आप भी राजी हुए हैं, तो फिर डीले में डीले क्यों? और एक बात, डीले की क्या हदीस है, क्या रेफरेंस है, दलील क्या है? आप लोग सवाल कर सकते हैं, हर आलिम से पूछा जाए, इमाम साहब हम डिले क्यों करें? सब कुछ तो कर रहे हैं, वलीमा भी हो रहा है, संग संग हो रहा है, हल्दी भी संग संग हो रहा है, मेहंदी लगाई भी संग संग हो रहा है, रुखसती भी संग, डीले मार क्यों? जो सुन्नत तरीका वो डीले हो जा रहा है, जो गैर सुन्नत तो फौरन वक्त का टाइम, उसी के लिए सुन्नत तरीके को अदा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रह रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। अब एक दूसरा सवाल, इससे पहले भी दर्स में सवाल आया था कि क्या औरत महर माफ भी कर सकती है? सवाल आया था, देखिए उसका जवाब क्या मैंने दिया, फइतिबना लकुम अन शैइन मिनहु नफ्सन। हाँ, अगर तुम्हारी बीवियां खुद बजाते खुद नफ्सन खुद से कुछ उसमें से माफ कर दे, कुछ माफ कर दे उसमें से, सब नहीं, अगर उसमें से अन शैइन मिनहु, उसमें से कुछ क्या है माफ कर दे, फकुलू हनी मरिया, तुम शौक से खाओ उसमें से। इसमें दो बातें देखिए, शौहर बीवी को प्रेस नहीं कर सकता कि आप कुछ छोड़ दीजिए। शौहर क्या है, बीवी को प्रेशर नहीं दे सकता कि आप कुछ माफ कर दो। और प्रेशर की नौबतें क्यों आएगी? जब हम शादी करने जा रहे हैं तो बैठ के तैयारी कर दी, तो प्रेशर की नौबत नहीं आएगी, है ना? तो शौहर बीवी को प्रेशर नहीं दे सकता। हाँ, अगर खुदा न खास्ता महर में ताखिर हो गई है और बीवी अपने शौहर के हालात को देख रही है, ये बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो ये कह सकती है कि आप एक काम कीजिए, पहले तो महर को अदा कीजिए, ये सुन्नत तरीका आप छोड़े हुए हैं, उसमें से हमें कुछ कंसेशन कर देती हूँ, 5 रुपये देना है, 2 रुपये छोड़ दो, 3 रुपये दीजिए पहले, है ना? अगर अपनी मर्जी से कोई प्रेशर ना हो तो तुम खाओ, शौक से खाओ उसको, और अगर वो माफ ना करे तो देना है। तो शादी का जो तरीका है थोड़ा सा उसमें हमें तब्दीली लानी, तब्दीली क्या है, शुरू से यही कानून है, लेकिन हमने तब्दीली इसी में कर दिया। आप या हम में से किसी घर में शादी होती है तो एक बजट निकलता है कि वलीमा में कितने लोग रहेंगे, 700, 300, 500, 10, है ना? बजट रहता है, पंडाल वालों का बजट रहता है, कैटरिंग वालों का रहता है, बावर्ची का रहता है कि नहीं रहता है? महर को नहीं रहता है। तब ये बहुत गंभीर सवाल है कि महर का क्यों नहीं रहता है बजट। इसका मतलब ये है कि एक सिलसिला चलता आ रहा है महर के ताल्लुक से, कि हम उसको बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल ये कि हदीस कहाँ है, आयत कहाँ पे है, रेफरेंस क्या है कि हम डिले करें, ये चीज एविडेंस तो होना चाहिए ना, है तब ना हम डिले करेंगे। अब हमारे पहले के लोग डिले करते आ रहे थे, उस हिसाब से हम भी चले, तो गलत बात है। मैं फिर कहूँगा कि ऐसे बहुत से नौजवान माशाल्लाह मुआशरे के अंदर आए, बहुत से उलमा ने भी काम किया कि अब नौजवान हमारे भाई फौरन अदा कर देते, चाहे जेवर की शक्ल में देते हो, चाहे कैश की शक्ल में। महर के लिए कोई हदीस नहीं आई है कि आपको पैसा ही देना है, कि आपको रुपया ही देना है, दिनार और दिरहम देना है। आप सोने का जो आपके पास इस्तात हो, अभी बताइए ना, सहाबी कुरान याद करा दिए, वही महर था कि नहीं था? वही महर बना। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छा करना चाहते हीरे का हार बना दीजिए, अल्लाह ने आपको ताकत दिया हुआ है, आप बनाइए, बेहतरीन चीज़ है। सोने का कोई अच्छा जेवर बना दीजिए। यहाँ तो महर में नहीं दे रहे, जेवर जेवरात कैसे बनेगा, यहाँ तो मसला एक गड़बड़ हुए, तो महर का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए महर क्या है, महर का मामला है कि शौहर की कमाई को, एक शौहर अच्छा कमा रहा है और 5,000 महर दिखा के गलत, ये नाइंसाफी है, ये ज्यादती। अब देखें एक और चीज में और मैं ऐड करता चलूँ, जो हमारे मुआशरे से जुड़ी बात, हमारे समाज से होता क्या है कि महर के बारे में तो कोई डिस्कशन है नहीं, उसको सिर्फ खाना पूरी के लिए लिख दिया जाता है। काजी साहब भी अपने पेट पे खाना पूरी के लिए लिख लेते हैं, 5 रुपया महर के तौर पर है, और शादी के बाद तो छोड़ दीजिए, कई सालों तक डिस्कशन है। शादी के बाद क्या डिस्कशन होता है, चौथारी हमें चलता है हमारे यहाँ वलीमा जिसे बोलते हैं। जैसे लड़का आज शादी करने के लिए बारात लेकर आया और लड़की लेकर सुबह या दिन में शाम में चले, 3 दिन 4 दिन के बाद
लड़की वाले जाते, वलीमा जो लड़का करता है, तो जो लड़की वाले जाते तो हम चौथारी बोलते हैं, है ना। अलग अलग जगह पर बहुत सी चीजें बोली जाती हैं, हम तो चौथारी बोलते हैं अपनी कलकत्ता में। चौथारी से पहले क्या डिस्कशन होता है कि सुनो ना, कुकर तुम्हारा छूट गया, घर में फोन कर देगी कुकर लेकर आने की, कुकर नहीं मिला है, तुम्हारा अब्बा को नजर नहीं आया, घड़ी भी नजर नहीं आ रही, टाइम कैसे देखेगा तुम। यानी ससुराल वाले क्या जो सामान लेकर आए हैं उसमें जोड़ घटाव चल रहा है। अच्छा, उनका यानी ससुराल वालों की एक लिस्ट है, अब लिस्ट में एक आदमी टिक आउट करता है, देखो तो पीतल का बर्तन ओके, गमला ठीक है, ये ठीक है, मिक्सर मशीन ठीक है, वॉशिंग मशीन जा मिस है। फोन कर देगी बाबू, आदमी क्या बोलेगा, तुम्हारे शोहर की बेइज्जती है। वो ससुराल वाले महल में पुलिस कैसे नहीं करती, तुम्हारा जो हिस्सा मेरा बेटा नहीं दिया है उस पर कोई बात हो जाए। मेरा बेटा तुमको लेकर आ गया, 3 दिन हो गया, कल वलीमा है, अभी तुमको महर तक नहीं दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं है कि नहीं। रस्मों में और बेजा अखराजात में, फजूल खर्ची में ऐसे हम उलझे हुए हैं कि हमें सही और सच्ची दिखाई। अल्लाह ने कहा कि अगर वो तुम्हें अपनी खुशी से वजह के खुद माफ कर दे, फकुलू हनीयम मरिया, तो तुम शौक से खाओ, शौक से खाओ, खुशी खुशी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। और प्रेशर की नौबत कब आती है, जब हम डिले करते हैं। जब डिले करेंगे तब लड़की प्रेशर देगी कि भाई मेरा महर दीजिए, हम उसी वक्त कहते बात खत्म हो गया। उसके बाद आयत नंबर 5 सूरह निसा, अल्लाह ने कहा वला तुसफहा अमवालुकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, तुम अपने माल को ऐसे लोगों के हाथों में मत दे दो जो नादान है, बेवकूफ है, अकल नहीं है उनको, कि ये माल को अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम उस पर कायम रहो, मतलब जिंदा रहो, खाओ पियो, इसलिए माल को दिया। यहाँ पर मतलब हर आदमी से कहा जा रहा है कि आप लोग में से हर कोई जो कमाते हैं, तो कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, कमाई के बाद जो हासिल हो रहा है पैसा, मेहनत के बाद जो पैसा हासिल हो रहा है, उसमें घर चलाना है, राशन वाले का है, बनिए वाले का है, ये है वो है, अखराजात है, तरकारी सब्जी जो भी, चावल आटा जो भी है, उसको अपने तौर पर अकलमंदी से जायज जगहों पर खर्च करना। ऐसे आदमी के हाथ में नहीं देना है जो बेवकूफ हो, जिसको पता ही नहीं कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे उसमें बजट की जाती है ना। ये भी तो ऐसे लोगों को ना दो। हाँ, अल्लाह ने आगे बयान किया वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा, तुम उसमें से उनको खिलाओ, वक्सूहुम और उनको पहनाओ, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा और उनसे भली बात कहो। इनडायरेक्टली बीवी मुखातब है, तर्जुमा ही समझ में आ रहा है कि तुम उसको उसी में से खिलाओ। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा, तुम अपने माल को ऐसे बेवकूफ और नादान के हाथ में ना दे दो कि जिसको अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम उसके जरिया से कायम रहो, है ना। अल्लाह कह रहा है कि नहीं मत दो, अगर बेवकूफ है तो देवे मत करो, पर दिमाग है तो और मत दो। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा, उसमें से खिलाओ उसको, वक्सूहुम उसी में से पहनाओ उसको, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, जब उससे बात करो अच्छी बात करो, नरमी से बात करो, तो आपका बात सही है, मुराद वही लोग है। लेकिन यहाँ बेवकूफ बोलकर जलील नहीं किया जाता, बल्कि क्या है कि हर आदमी को हर चीज़ का आइडिया नहीं होता है ना। अब जैसे एक आदमी है, वो पेशे से प्लम्बर है, अब उसको इलेक्ट्रिक का काम दीजिएगा तो नहीं कर पाएगा, तो अल्लाह उसको बेवकूफ में नादान कह रहा है, वो उस काम में नादान है वो। अब जबरदस्ती वो लेकर तो मैं दीजिए ना, हम कर लेंगे। और क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हमारे भाई भी हैं जो माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं, लेकिन सारे कंट्रोल अपनी ऐसी बीवी के हाथ में जिनके पास दिमाग नहीं घर चलाने का, और देकर फंसे हुए हैं। इतना रुपया ला के दे रहे हैं और माइनस में चल जा रहा है हिसाब, जबकि वो सोच के रखे हुए 7 साल से कि बजट कुछ हुआ होगा, कभी वक्त पड़ेगा तो हम ले लेंगे, और वक्त पे जब मांग रहे तो माइनस में चल रहा है। तो अल्लाह ने ये भी कहा कि घर घर से चलाने के लिए देख लो, अगर तुम्हारे जो हमसफर है, जो बीवी है, अगर चालाक है, समझदार है माशाअल्लाह, तो उनको दो, मौका दो उनको। रिश्ता और ताल्लुकात और खानदान और घर परिवार तो ऐसे करता है, आपसी मेल जुल से। लेकिन जब पता चल जाए, अगर मान लीजिए कि शौहर ही कमाना बेवकूफ है, अब बीवी चालाक है, ऐसा नहीं इसको एक तरफ ना देखा जाए, बीवी चालाक है तो बीवी क्या करे, शौहर से कहे कि आप कमा के हमको दीजिए, हम चला देंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना, आप घबराइए मत। तो शौहर अगर समझदार होगा इस मामले में, समझेगा क्या आपको तो उतना आइडिया है नहीं, चलो इसको दे देते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हमारा समाज उसको जोड़ू का गुलाम कहता है। ये भी एक मसला है भाई, मियां बीवी के रिश्ते को इतनी ज्यादा रस्मों से मतलब उसको जोड़ दिया गया है। तो चूंकि बात आई तो बात समझने की कोशिश करें हम लोग
کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ لڑکا بیوی کو لے کر جا رہا ہے اور جس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے اس کو لے کر جا رہا ہے اپنے گھر، کر رہا ہے نا. ہم لوگ تو بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکی ودا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. اب وہ بھی چھوٹی بہن ہو، خالہ ہو، دادی ہو. آج کل بوڑھی عورت زیادہ جاتی ہے، پہلے سالی وغیرہ جاتی تھی، اب بوڑھی عورت کے چل رہا ہے. اب وہ ساتھ میں چلی گئی. اب لڑکا شادی کیا ہوا ہے، اس کے جذبات ہے، اس کی خواہشات ہے، اس کے مسائل ہیں. وہ اب اس کی بیوی ہے لیگل طور پہ، قانونی طور پہ وہ نکاح کر کے لایا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے بیٹھ کے کچھ باتیں کرے، کچھ اپنے پریشانی کو. ایسا نہیں نہ ہے کہ شادی جو آدمی کر رہا ہے بالکل غموں سے وہ بری ہے. بہت سے لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں. اور بیوی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لتسکن الیہا، تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. تو یہ سکون ولیمہ کے بعد حاصل ہوتے پہلے نہیں ہوتا. یہ معاملہ ہے. یعنی ہم ودا کر کے لائے تو اب ہماری اصل طور پہ ہمارے اوپر ہینڈ اوور کب کی جائے گی؟ ولیمہ کے بعد. یہ بھی ایک عجیب و غریب رسم و رواج ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کا ایک واقعہ سنیں، بلکہ ان کا نہیں، ان کی ندنی کا ایک واقعہ ہے. ان کے داماد بھی بہت بڑے محدث ہیں. ان کے داماد اور ان کے داماد کی جو بیٹی نتنی، بیٹی کی بیٹی نتنی ہوئی، وہ بہت خوبصورت تھی ماشاء اللہ. مطلب خوبصورتی میں کوئی اس دور کی مثال نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی نتنی کی بات ہے. اس وقت کی جو بادشاہ وقت انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو ہریرہ کے داماد کے پاس کہ ہم آپ کی لڑکی سے نکاح کر لیں. لیکن دیکھیے باپ کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں پر آج کل اگر ہم لوگ لڑکی کس کے دیتے ہیں؟ جو اچھا کمائے، باقی اس کا کریکٹر جیسا بھی ہے نا، مال کے اعتبار سے اچھا ہو، وہ جیسا چلے گا. کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے. آج بڑے بڑے پیسے والے پریشان، بہت پیسہ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے سے، لیکن وہ ان کو نیند نہیں آ رہا، سو نہیں پا رہے، وہ اپنا وقت اپنے پریوار کے ساتھ نہیں دے پا رہے. اتنے پیسے میں مشغول ہو گئے کہ بیوی کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے شوہر سے ملنے کے. حالات ایسے پیدا ہوئے ہے نا. ان کے بعد بادشاہ وقت کا بھی نکاح کا پیغام کیا. ان کے والد نے ابو ہریرہ کے داماد نے منع کر دیا. کیوں؟ ان کو دیندار لڑکا چاہیے تھا، وہ کچھ اور چاہتے تھے. تو ان کے درس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد کے درس میں بہت سے لوگ آتے تھے اور حدیث سیکھتے تھے. ایسی پڑھائی ہوتی تھی. تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ جو تھا کئی دنوں سے نہیں آ رہا تھا. نوٹس کیا انہوں نے کہ فلاں لڑکا نہیں آ رہا ہے. پوچھنے پر بتایا گیا کہ شیخ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی کفن دفن میں بیچارہ لگا ہوا ہے. بتائیے اسٹوڈنٹ کے بیوی کا انتقال ہو گیا، سر کو نہیں پتہ چلا. پہلے کے لوگ اپنے غموں کو کیسے چھپاتے تھے اور کیسے چاہتے تھے کہ ہمارے اساتذہ بھی پریشان نہ ہو ہمارے چکر میں، اور درس چلتا رہا. کفن دفن میں حضرت لگا ہوا ہے. اس کے بعد وہ آیا، انہوں نے پوچھا وجہ تو بتایا کہ ہاں اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے. تو تھوڑا سا میں ذہنی طور پر پریشان ہوں. کوئی بھی کسی کی بیوی ان کے دل کے قریب ہوتی ہے، شوہر کی، آسان نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیے تمہارے لیے ایک نکاح کا آفر ہے، اگر تم کو اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرانا چاہتا ہوں. اس بیٹی کا نکاح جس کا پیغام بادشاہ وقت کی طرف سے بھی آیا. ایک عام سا لڑکا جو مزدوری کرتا تھا اور کلاس میں درس میں بیٹھتا تھا. بہت شرمندہ ہوا کہ آپ ہمارے استاد ہیں، ہمارے سر ہیں، اور آپ کو بڑی عزت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اور بڑی عزت بھی ہے ہمارے دلوں میں، اور آپ کی بیٹی سے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے داماد نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم نکاح کرو میری بیٹی سے. اور جب اپنی بیٹی سے پوچھنے گئے تو بیٹی نے کہا کہ آپ اگر بادشاہ وقت کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں اور اس لڑکی سے کرانا چاہتے ہیں تو آپ بہت کچھ سوچے ہوئے ہے نا. اور ابھی کے زمانے میں لڑکا دھوکا ہے، لڑکا طلاق یافتہ ہے، اس کی بیوی انتقال کر کے ہوگا. لیکن ہم نے شریعت کو کتنا مشکل بنا دیا ہے. اپنے آپ پہ ہمارا دھیان نہیں ہے. ہم لوگ تو نصارہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے، اپنے آپ کو پریڈکٹ کر لیں، ان کو بعد میں دیکھیں گے. لڑکی تیار ہو گئی، کتنی فرما بردار لڑکی تھی، باپ کو تو پریشانی ہی نہیں ہوئی. پھر بھی باپ نے پوچھا، نہیں ہاں ہم کو منظور ہے. اور اسی مجلس میں نکاح ہو گیا. اسی مجلس میں لڑکی ادھر ہاں کہی اور درس کو روک کر یا درس کے بعد نکاح کر دیا گیا. لڑکا چلا گیا. نکاح کے بعد شرمندہ تھا کہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہے، سر ہے، عجیب لگ رہا تھا، چلا گیا. پھر رات کی تاریکی میں ہے کوئی پہنچے ابو ہریرہ کے داماد، اس لڑکے کے دروازے پہ دستک دیا. دروازہ کھولا کہ گھر میں کچھ نہیں، کوئی سازش سامان کچھ نہیں تھا.
जिंदगी गुजारने के लिए जो चीजें चाहिए थी बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ ऐसा महल नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जो बादशाह के यहाँ से पैगाम है तो महल महल। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो आ गए अपने घर, अपना सामान तुम छोड़ दिए। उन्होंने कहा हजरत क्या छोड़े? तुम्हारी बीवी छोड़ी, बीवी को ले जाओ। छोड़ के कैसे चले जाए? निकाह का मतलब तुम्हारी हम सफर बन गए, तुम्हारी बीवी है, उसको ले जाओ। तुम छोड़ दिए तो हम लाकर पहुंचा रहे तुम्हारी अमानत को। तो बीवी शोहर के पास कितनी देर में चली? और हम लोग क्या है, निकाह करने के बाद भी कब्जे में है लड़की, वलीमा के बाद ही आपको हैंड ओवर किया गया, उससे पहले चांसी में। ये हालत हम लोग बना दिए हुए निकाह को इतना आसान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद का ये मामला है कि बादशाह वक्त की पैगाम को ठुकरा दिया और एक ऐसे लड़की को दिया जो जिंदार था, शादीशुदा था, बीवी का इंतकाल हो गया था और उस लड़की का निकाह उस लड़के से उन्होंने खुद करा दिया। तो शादी को आसान बनाना है, रस्मों से नहीं इसको घेरना है। हालात तो ऐसे हमारे घरों के हो गए कि अगर शादी के बाद शोहर की या बीवी की ख्वाहिश है कि हम लोग एक साथ खाना खाए तो आफतें हैं, है कि नहीं? आफत है, मियाँ बीवी है, शौक है, चाहत रखते हैं एक साथ बैठ कर खाएं, आफत हो जाएगी। उसके बाद वो आपको कई लकब से मुलाकात किया जाएगा, आप गुरु के गुलाम हैं, औरत को सुनने वाले हैं, नामर्द हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं। ऐसे मुआशरे में हम लोग जी रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा मुआशरा इस्लामी है। तो अल्लाह ने कहा कि उसी में से उसको खिलाओ, उसी में से पहनाओ, और जब उससे कोई बात कहो तो भली बात कहो, अच्छी बात कहो। उसके बाद आयत नंबर 6 सूरह निसा आयत नंबर 6। अब अल्लाह ताला ने यतीम के बारे में बयान किया। देखिए ये सूरह निसा जब भी चलेगी, कभी मियाँ बीवी के हुकूक की बात होगी, कभी यतीमों की बात होगी, कभी मिरास की बात होगी, कभी मसले मसाइल की बात होगी, यही खूबसूरती इस सूरत। अब शादी ब्याह के मसले के बाद अब क्या मसला आ गया? यतीम का। ऊपर भी यतीम का मसला गुजर चुका है कि वआतु यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब। फिर यतीम का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। जो लोग यतीम की किफालत करते हैं, परवरिश करते हैं, उनको अल्लाह कह रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में एक आदमी का इंतकाल हो गया, मर्द है, अब उनके बच्चे हैं, तो बाप अगर गुजर जाए तो बच्चे यतीम कहलाते हैं। अब हम हिंदुस्तानी मुसलमान का माइंड देखिए, हम यतीम उसको समझते हैं जो गरीब हो, मिस्कीन हो। बात तो नहीं है, ये तो सही है, लेकिन बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास, मतलब आखिरी गुर्बत की दहलीज पर वो यतीम है नहीं। कुरान ने उनको भी यतीम कहा है जो करोड़पति है, जिनके बाप अरबों खरबों रुपये छोड़ कर गए और इंतकाल कर गए, वो बच्चा यतीम है, वो भी यतीम। उसी का जिक्र यहाँ अल्लाह ने कहा वक़्तुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। और यतीमों को तुम आजमाते रहो जब तक कि वो शऊर को ना पहुंच जाए, अक्लमंद ना हो जाए, बड़े ना हो जाए, या निकाह करने के लिए काबिल ना हो। अब एक आदमी इंतकाल करे, उसके बच्चे है ना, उस बच्चे के माल वगैरह भी हैं। सवाल ये है कि बाप रहता है, सब देखता है ना कहाँ पर हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, जायदाद, जमीन है। वो बेचारा तो इंतकाल कर गया, बच्चों में कहाँ उतना शऊर है। तो उसमें क्या होता है कि शैतान ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है कि उसका माल हड़पना चाहते हैं। अच्छा बनकर खूब घर में जाएंगे, पहले खूब खर्च करेंगे, कुछ मिठाइयाँ ले जाएंगे, चाउमीन ले जाएंगे, पकौड़े ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, खुश करेंगे, ताकि एतमाद हो जाए कि उसको नजर है दौलत पर, इसका बाप बहुत माल छोड़ के गया है। देखिए शरीयत कितनी बेहतरीन तालीम है इस्लाम का, कि इस सिचुएशन में भी इस्लाम ने बयान कर दिया कि अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए, बच्चे यतीम हो जाए, तो क्या करना है, उस यतीम की किफालत करो। कोई मुसलमान खड़ा हो ईमानदारी के साथ, फायदे के लिए नहीं, जन्नत के फायदे के लिए। इसलिए नहीं करे कि जब ये बड़ा हो जाएगा हम परवरिश कर देंगे तो बाप की हैसियत रख लेंगे और उसके बाद सब कुछ तो मेरा ही है। इस नियत से नहीं, इस नियत से कि जन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलेगा, इस नियत से हम यतीमों की किफालत करें। अब एक आदमी यतीम की किफालत कर रहा है अच्छी नियत से, तो अल्लाह उसको कहेगा देखो तुम किफालत कर रहे हो तो टेस्ट लेते रहो, देखो कि ज़हनी तौर पर वो बालिग हुआ है कि नहीं, समझदार हुआ है कि नहीं, अकलमंद हुआ है कि नहीं, है ना। वक़्तुल यतामा, यतीमों को आजमाते रहो, मतलब उनका एग्जाम लेते रहो, परखते रहो, हत्ता इज़ा बलगुन, लेकर जब तक वो बालिग ना हो जाए। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, फिर तुम उसमें कुछ खैर देखो, चालाकी देखो, शुऊर देखो, फदफउ इलैहिम अमवालहुम, तो उनके माल उनको लौटा दो। कहो कि देखो बाबू तुम 3 साल के थे, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, और माशाअल्लाह तुम समझदार हो, तुम समझ जाते हो,
हम नहीं समझ पाते। बहुत अच्छा तुम तुम्हारा जहन भी है और समझदार भी हो गया हो, तो ये तुम्हारी परवरिश जहाँ तक हमको कर रहा था कर दिया हमने। अब तुम बाशऊर हो गए, तो ये तुम्हारी सारी जायदाद प्रॉपर्टी है जो मेरे पास थी, हिफाजत से मैं रखा हुआ था, तुम उसको अपने उसको हैंड ओवर कर दो। क्योंकि ये तरीका भी है, देखें कि बहुत सी ऐसे हमारे माशरे में बहनें जो बूढ़ी हो गई हैं, जिनके हस्बैंड बहुत पहले इंतकाल कर गए, उनके बच्चे छोटे, आज बच्चे बड़े हो गए और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई सऊदी में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई बिजनेस में है, अच्छे कमा रहे हैं। तो अब उस औरत का सहारा बन गए बच्चे, बन गए कि नहीं बन गए? तो अब तो किसी की किफालत करने की जरूरत नहीं है। किफालत का मामला बचपन में आता है, बड़े में कैसे हो? बड़े तो बच्चे शऊर में। अल्लाह कह रहा है कि यतीमों को तुम आजमाते रहो जब तक कि वो बालिग ना हो गए, टेस्ट करने के लिए कि वो बालिग हो गए कि नहीं, समझदार हो गए कि नहीं। जब तुम उनके अंदर शऊर देखो, उनमें से किसी के अंदर फदफाउ इलैहिम अमवालहुम, तो उनके माल उनके हैंड ओवर कर दो, उनको लौटा दो, भाई यहाँ से आप ले लीजिए, और आप भी गवाह रहिए और हम भी अल्लाह के सामने गवाह रहेंगे, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा वला ताकुलू इसराफा व बिदारन अन यकबरू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ये देखो कि जहाँ बच्चों तो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बढ़ेगा तो पैसा खोजेगा, तब फिर जल्दी खत्म कर दो, अच्छा चले क्या को भी खा उसी, ये सोचकर, है ना। अब जैसे आम का सीजन है, अब 4 आदमी है तो 2 किलो आम काफी, तो 20 किलो आम आ गया। सेब का सीजन है तो पूरा 1 कंटेनर आ गया, पैसा है बहुत। अब बड़ा होगा तो खुद ही ले लेगा, हमको तो लेने की जरूरत नहीं, चलो भाई ऐश करते इसी पैसे में। ये भी अल्लाह ने कहा वला ताकुलू इसराफ, इसराफ कहते हैं फजूल खर्ची को। इसराफ क्या कहते हैं? फजूल खर्ची। वला ताकुलू इसराफा व बिदारन अन यकबरू, अकबर से यकबरू है बड़ा, इस डर से कहीं वो बड़ा ना हो जाए, तुम जल्दी जल्दी फजूल खर्ची मत करो, ऐसा भी ना करो। वमन काना गनियन, अब जिस तुम में से जो मालदार हो उसे चाहिए कि दरगुजर करे। अब एक आदमी को किफालत करो तो मालदार है, तभी तो किफालत कर रहा है, ये गरीबी है। मालदार अगर है तो उसको दरगुजर कर दो, तो क्या करेंगे, मेरे पास तो पहले से ऑलरेडी है, तो चाहिए दरगुजर करे। वमन काना फकीर, अगर कोई फकीर है तो फलियाकुल बिल मारूफ, यानी यतीम की किफालत करने वाले की बात करो। अगर किफालत करने वाले, जिसे कफील बोलते हो उर्दू, कफील है जो किफालत कर रहा है, अगर वो मालदार है तो उसके पैसे उधर उधर कर, तुम्हारा पैसा ले लोगे जब होशियार हो जाओगे। और अगर गरीब है, किफालत करने वाला, यानी उसके खुद बच्चे हैं, औलाद बड़ी मुश्किल से कमाता खाता और परवरिश करता, लेकिन देख रहे हैं कि बच्चा यतीम हो गया, चलो भाई जहाँ हमारे बच्चे खाते भी खाएंगे, उसी बच्चों के साथ उनको रखेंगे और अपने बच्चे की हैसियत देंगे, है ना। तो अगर उमन का ना फकीर, अगर कफील फकीर हो, फलियाकुल बिल मारूफ, तो वो भलाई के साथ खा सकता है, कि वो खुद ही बेचारा गरीब है, कैसे कैसे वो इंतजाम करेगा, नहीं हो पा रहा है, तो यतीम के माल में से इस्तेमाल कर सकता है। बहालत की जरूरत कर रहा है, बहालत मजबूरी। यहाँ एक नुक्ता बताने का मकसद है कि इस्लाम की इतनी अच्छी और बेहतरीन तालीम है, हम मर्द तो इसको सुनते रहते हैं जुमा के खुतबे में या जलसे जुलूस में, दर्स में, इसमें असल जो मसला है औरतों का है। प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ कि मान लीजिए अल्लाह ना करे हमारे पड़ोस में कोई आदमी इंतकाल कर गया, औरत भी कमजोर है, कहाँ से कमाएगी, बच्चे 3-4 हैं, बाप चला गया। अब 4 परिवार तैयार हुए कि ऐसा करते हैं कि एक बच्चा हम ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी लेते हैं तो पूरा खर्चा लाके इसकी माँ को दे, या तो लेके घर चले जाए या उसकी माँ को दे दे, है ना, कोई भी तरीका अपना ले। 4 परिवार तैयार हो गया और लेके जब जाता है तो औरत की तरफ से ऑब्जेक्शन, बीवी की तरफ से, इल्ला माशाअल्लाह 1-2 ऐसे अल्लाह की बंदियां निकल जाती हैं तो खुद ही कहती है कि जाके लेके आइए, ऐसी बात नहीं। यहाँ औरत साथ को बेइज्जत करने वाली बात नहीं हो रही, ना उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही। अक्सर मामूल के मुताबिक ऐसा ही है, हस्बैंड जाता है, उस औरत के उस आदमी के बच्चे को लेकर इंतकाल कर दिया, तो बीवी की तरफ से ऑब्जेक्शन हो जाता है कि आपको खुद का ठीक ही नहीं है, लबर चबर करते रहते हैं, ला के दीजिए अभी साड़ी, जो बोले थे दिए भी तक 2 साल हो गए, कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहने, लड़का को उठा के लेके चले आए उसको परवरिश करने के लिए, इस तरह की बातें होती हैं। तो मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जहन को, अपने मिजाज को इस्लामी सांचे में डालें। आप अभी वो आगे एक आयत आएगी, वो आयत अभी आएगी जो झिझोड़ देगी हम लोगों को, तो उसके बाद उस आयत को सुनने के बाद भी अगर यतीम को ना देखे तो इसका मतलब ये कि हमारा जमीन सो जाता है। और उस आयत को जानने के बावजूद हम यतीमों को ना देखें, आज क्या वजह है कि यतीम खाना बनाने की जरूरत है, क्यों बनाना पड़ रहा है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यतीम खाना था? बताए था उस जमाने में, जबकि रियासत मदीना की तरफ ले जैसे तो आज तक बनी है। जैसा एम्पायर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर खड़ा किया, उसकी नजीर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या
ओल्ड एज होम था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, क्या यतीम खाने थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में? सहाबा टूट पड़ते थे। कोई बच्चा यतीम हो जाता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आवाज़ देते थे किसी की हिफाजत कौन करेगा, तो एक के बजाय 10 और 100 सहाबा पहुंच जाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दीजिए, मुझे आपके साथ जन्नत में रहना है। आज ये चीज़ क्यों नहीं हो रही? सोचने वाली बात है। क्यों हम मुसलमान नहीं हैं? वो सहाबा जिस कुरान को फॉलो करते थे वो कुरान तो हमारे पास भी है। वो सहाबा जिस नबी के लिए जान देने को तैयार थे वो नबी तो हमारे भी हैं। वो सहाबा जिस अल्लाह की इबादत करते थे वो अल्लाह हमारे भी हैं। वो सहाबा जिस दिन को कबूल करके यतीमों की इबादत करते थे वो दिन तो हमारे लिए भी है। उसी दिन पे हम चल रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ एक यतीम की बात आए तो देखिए क्या मामला होता है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि यतीम खानों में हमारे यतीम बच्चे पल रहे हैं। अब वो आयत आएगी आगे, अल्लाह ने बयान किया फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम, और जब तुम यतीमों के उनके बालिग हो जाने के बाद उनके माल उनको वापस करो, फशहिदू अलैहिम, तो उस पर गवाह बनाए। अल्लाह ने तरीका बताया कि ठीक है बचपन से परवरिश कर रहे हैं, आप ईमानदार है तो कोई शक नहीं, फिर भी उसका जब माल दो तो गवाह बना लो। हो सकता है कि लड़का ही ऑब्जेक्शन कर दिया कि चल के आवाम ना कुछ बोले, समाज ना बोले, वो लड़का बोल दे कि नहीं आपको कम दे रहे हैं, है ना, तो गवाह बना ताकि आगे चल के कोई मसला ना, गवाह बना। वो कफा बिल्लाहि हसीबा, और हिसाब लेने के एतबार से अल्लाह काफी है। अल्लाह बोलना चाहता है कि आवाम जो भी कहे अल्लाह को सब पता है। आपने किस नीयत से उसकी कफालत की होगी अल्लाह को पता है कि नहीं, अल्लाह को सब पता है। इसीलिए कोई आदमी बेवकूफ़ ना समझे नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को कि अल्लाह को कुछ नहीं मालूम और हम गंदे नीयत से काम कर रहे हैं कि अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। अब देखिए फिर मिरास की बात है। निकाह का मामला खत्म हुआ, यतीम का मामला आ गया। अब यतीम का मामला खत्म हुआ इस आयत में, आयत नंबर 6 में, तो आयत नंबर 7 में आ गया मिरास के बारे में। अल्लाह ने कहा आयत नंबर 7 में सूरह निसा, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, मर्दों के लिए तरका है, नसीब मतलब हिस्सा कमाना होता है। मर्दों के लिए हिस्सा है किसमें, जो कुछ उसके वालिदैन या अक़रबा छोड़कर गए हैं। वालिदैन यानी पेरेंट्स, अक़रबा मतलब रिश्तेदार। मर्दों के लिए हिस्सा है जो कुछ उसके माँ बाप या उसके करीब कराबतदार छोड़कर गए हैं। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो कुछ उसके माँ बाप और अक़रबा छोड़कर गए हैं। इसमें अब आयत को मिला है, सिर्फ एक लफ्ज़ ही बदला हुआ है, एक रिजाल और एक निसा, बाकी सब सेम टू सेम। वलिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, सेम लफ्ज़ है। मर्दों के लिए हिस्सा है उनके माँ बाप जो छोड़कर गए या उनके करीब कराबतदार छोड़कर गए। औरतों के लिए मिरास में हिस्सा है, जमीन जायदाद में हिस्सा है जो कुछ उनके माँ बाप छोड़ के गए या उनके अक़रबा। अब असल लफ्ज़ आ रहा है मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा, चाहे वो प्रॉपर्टी थोड़ा हो या ज़्यादा। ज़्यादा वाला तो लोग आसानी से दे देते हैं कि हाँ बुबू को बुला लो दे देंगे, भैया को बुला लो। कम वाला में हम ही लोगों को रहने का दिक्कत है बाजी, कैसे आपको देंगे। कुरान का साफ साफ लफ्ज़, कल्ला मतलब अक़लियत से है, कलील से है, कसुरा अक्सरियत से है, कसीर से। उर्दू लफ्ज़ है, आसानी समझ में आ जाएगा। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा, चाहे वो माँ बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी सी हो और चाहे ज्यादा हो। ये एक ही घर हो और 4 भाई बहन है तो उसमें बंटवारा हो, एक ही घर है चारों को बांटना। अब ये बात की बात है, कोई छोड़ दे, कोई पैसा ले ले, कोई माफ कर दे, वो तो सेकंड स्टेप है। पहले फर्स्ट फ्लोर पे तो चढ़े, फर्स्ट पे चढ़ के नहीं कि सेकंड की बात है, समझा रही ना, वो बात की बात है। कोई ना छोड़े हो सकता है, ये भी तो सकता है कि कोई ना छोड़े उसी में लेंगे, क्या होगा। कभी भी ये ना सोचा, आज यही हमारे माशरे में जमाने जाहिलियत में एक जो जाहिलाना रिवाज था, ये था कि औरतों को और बच्चों को हिस्सा नहीं देना। वो लोग औरत जात को और बच्चों को हिस्से से दूर रखते थे और सिर्फ मर्द को दे देते। यानी बाप मर गया पूरा बेटा का, बेटी का कोई हक नहीं। आज भी हिंदुस्तान में देखेंगे इस तरह के बहुत से मज़ाहिब हैं जो बेटी को नहीं देते, इस्लाम में है। अल्लाह ने साफ साफ कहा सूरह निसा आयत नंबर 7 में, मर्द हो या औरत, उनके माँ बाप जो छोड़कर गए हैं या उनके कराबतदार जो छोड़कर गए हैं, उसमें लड़की के साथ साथ लड़की का भी हिस्सा है, गर्चे कल्ला मिनु और कसुरा, थोड़ा ही हो या ज्यादा, बात खत्म। देना है मतलब देना है। अब कलील कसीर की बात कब है, जब लड़का नालायक हो, कमी भी नहीं करेगा, बाप की प्रॉपर्टी पे तो ही बोलेगा कम है। लड़का कमा अपना नहीं बना सकता, अभी छोड़ कलील कसीर की बात ही नहीं आएगी। ये अलग बात है कि बहन छोड़ दे, माफ कर दे, वो अलग चीज है, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते कि आप छोड़ दीजिए।
हम उसे ये नहीं कह सकते कि आपका ससुराल तो धनबाद में, आपको यहाँ का रहना नहीं है तो आपको दे दीजिए, पैसा ले लीजिए। आप लोग बोले कि हमको रहना तो जमीन देना, हो सकता है रहने के रहता हो सकता है उसके जहन में, बहन के जहन में हो कि हमारी पैदाइशी जगह है, उसको लेकर रहेंगे हम यादगार के लिए, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ हमारी जवानी गुजरी, जहाँ हमारी शादी हुई, जिस आंगन से हम विदा हुए, हम उस जगह को लेकर रहेंगे। आज हमारे माशरे में अगर बहन इस चीज को अगर मुतालबा कर दे तो उसे गद्दार माना जाता है, नमक हराम माना जाता है, बागी माना जाता है कि बहन बगावत कर रही है। मेरे भाई अल्लाह से ले, ये कुरान का हुक्म साफ और सरल है। आगे लाने का नसीबा मफरूजा, और सबके हक मुकर्रर है। नसीबा मफरूजा का माना क्या हुआ? कभी भी बाप की जिंदगी में बंटवारा ना करें, ये शरीयत का कानून नहीं है, याद रखें। हम लोग बाप की जिंदगी में बंटवारा करते क्यों नहीं? अगर अब्बा मर गए तो मारपीट होगा, उसके बाद कैसे माफ होगा, कैसे मारपीट होगा? नसीबा मफरूजा, सबका हक मुकर्रर। कुरान ने कह दिया फिक्स है सब। कैसे किसी मॉल में हो जाते तो फिक्स प्राइस होता है ना, वो चाहे स्टाफ आए चाहे ना आए, मालिक मर जाए, मालिक का दादा मर जाए, वो फिक्स प्राइस है। आपको भी हम 5 रुपए में देंगे, उनको भी 5 रुपए देंगे, सबको 5 रुपए देंगे। माशाअल्लाह कभी कोई ओकेशन या फेस्टिवल आए, ऑफर चल, वो रखा। नसीबम मफरूजा, सबके हक मुकर्रर है। इसीलिए अब्बा की जिंदगी में बंटवारा ना हो। आजकल क्या हो रहा है, इस्लाम के तरीके से हट रहे हैं, बाप की जिंदगी में बंटवारा हो रहा है, बाप को अल्लाह लंबी उम्र दे रहा है, बाप जो है बिस्तर पे पैखाना कर दे रहा है, तो कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि काम हो गया मेरा। पूछे ना पूछे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हिस्सा अगर नहीं लगा रहेगा तो वो जमीन का काम करवा देगा, समझे ना, वो जमीन काम करवा देगा, जाएगा हदीस पहनाएगा, साफ करेगा, पाइप लगाएगा, प्रैक्टिकल बात है। और बाप की बात को नहीं समझ रहे हैं ना, आप दे देते, हम नहीं चाहते मेरे बात। अरे आप चाहने वाले कौन होते हैं? नबी से ज्यादा अच्छा सोचने वाले हैं, अल्लाह से ज्यादा सोचने वाले हैं। अच्छा बाप कमी करती है, बात से अपराध ऐसे है हमारे मुआशरे में, नहीं भाई हम सब टेंशन बाद में नहीं पालेंगे, हम चाहते हैं जिक्र की सबको हिस्सा दे दे। आप होते कौन है जितनी देने वाले? क्या आप कुरान से ऊपर है? आप नबी से ऊपर है? अल्लाह से ऊपर है? नहीं। नसीबम मफरूजा का माना सबका हक मुकर्रर है, आपको नहीं देना है। और ऐसी जो बात जाकर फंस जाते हैं, बातें बोलते हैं कि बेकार देंगे। ये कुरान की सही तालीम है, जब तक वारिस जिंदा हो हक हिस्सा नहीं लगेगा। अगर सवाल आ रहा है कि बाद में तो मारपीटों का नहीं होगा, कुरान में सबको फिक्स करना, सबका फिक्स है। अब अगर कोई जुल्मन ज्यादती करके हड़प लेता है, ज्यादा ले लेता है, तो हदीस भी याद रखनी चाहिए कि जिसने जानबूझकर किसी की जमीन एक बारिश ले ली तो अल्लाह 7 जमीन का तोक पहनाएगा, सब लागू हो जाएगा। उसके बाद कोई भाई है, हो सकता है बाप का इंतकाल हो गया, भाई अपने पावर का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भाइयों को दबा के ज्यादा ले लिया, बचा कुचा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये दुनिया तो फानी है, जाना है तो अकेले ही जाना, कुछ लेके नहीं जाना। जुल्म करे कोई हमारे ऊपर आखिरत में, इसीलिए हुकूकुल इबाद मेरे भाई, एक बात याद है कि जो लोग ऑनलाइन किया ऑफलाइन, हुकूकुल इबाद में चूक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की हुकूक में अगर चूक हुआ तो अल्लाह गफूर रहीम तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के अगर कुछ हुकूक हम दबा दिए, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा हमारे हुकूक जो है आगे नहीं बढ़ सकते। और क्या होगा मामला क़यामत के दिन? कल दोनों बंदों को लाया जाएगा, एक बंदा को लाया जाएगा, कहा जाएगा आपने उसका हक मारा था, आप उसको दीजिए। कहेगा अल्लाह कैसे दे, यहाँ पे कैसे दे? कोई बात नहीं, मत दीजिए, आपकी नेकी लेकर अल्लाह उसको दे, यानी मेहनत ही करेंगे, फल वो खा रहा है। क्यों? दुनिया में आप हक मार के बैठे हुए थे, तो अल्लाह उसकी नेकी उसको दे देगा। अब पता चला कि एक आदमी कई लोगों को बेवकूफ दुनिया बनाया था, हक मार के बैठा हुआ था। अब अल्लाह इसकी नेकी थोड़ा उसको देगा, थोड़ा उसको देगा, थोड़ा उसको देगा, 4 लोग बच गए, नेकी खत्म हो गया। तो अल्लाह क्या करेगा? उन जो लोग बच गए उनके गुनाह उठा के छोड़ेगा नहीं अल्लाह ताला। इसीलिए बंदों के जो हुकूक है, जिससे हम कर्ज लिए हुए हैं, जिसके हमारे साथ मामलात हैं, बेहतर रख के दुनिया से जाने की कोशिश करें। ये असल कंपटीशन है, एकदम साफ सुथरा पर्चा लिख कर जाए, जिसमें गड़बड़ी ना हो, क्योंकि वहां मौका नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मर्दों के साथ साथ औरतों के भी हक है, जो उसके माँ बाप या उसका अकरबा छोड़कर जाए, चाहे कम या थोड़ा, नसीबा मफरूजा, हक सबके मुकर्रर है। 7 नंबर आयत नंबर 8 में अल्लाह ने कहा वइज़ा हज़रल किस्मता उलुल कुर्बा, और तकसीम के वक्त, मान लीजिए कि हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग का बाप बेटा है, ठीक है, भाई है, बाप बेटा बैठे हुए हैं और तकसीम कर रहे हैं, ठीक है, तकसीम के वक्त बाप इंतकाल कर रहे हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं,
अब तकसीम हो रहा है कि भैया देखो हमने काजी साहब से पूरा खाता बनवा के लाया है कि हमारे अब्बा की इतनी प्रॉपर्टी थी और इसमें 4 भाई 3 बहन 10 बहन जो भी है ये बनकर आया है। अब इतने में कौन आ जाता है, उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, कोई रिश्तेदार आ गया जो गरीब है, कोई यतीम आ गया और कोई मिस्कीन आ गया। यतीम पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग क्योंकि यतीम के बारे में बात आई है। एक यतीम चल गया मोहल्ले का है, बगल का है, कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन करीब का है या दूर का है, यतीम है, हम जानते हैं कि यतीम है। या कोई रिश्तेदार चल गया वो भी गरीब है बेचारा, किराए के घर में रहता है ना। कोई मिस्कीन आ गया, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजरती है, तो अल्लाह ने कहा फरज़ुक़ूहुम मिन्हु, उसमें से उनको भी दे। सोचिए क्या इस्लाम की तालीम है, उनको भी दे। मिराज तकसीम हो रही है, हमारे अब्बा के खून पसीने की मेहनत की जायदाद को तकसीम किया जा रहा है ना। उसमें एक यतीम बच्चा खेलते हुए आ गया, कुछ मांगने के लिए आ गया कि अम्मी चापत्ती मांगी, चाय बनाना है तो दीजिए, दे दो। सब भाई इत्तेफाक कर दो, बहन भी इत्तेफाक कर दो, इन्हें ये काम करके थोड़ा छोड़ेंगे तो उधर आओ, जो अपना अम्मी बना खिलाओ। बाजी सुनिए, हम लोग का बहुत जमीन है, आप वो जो प्लॉट है इकट्ठा कर दीजिए। ये मिसाल कहाँ मिल रही है, ऐसे लोग हैं कहाँ दुनिया में, और ये बात कुरान की है और कुरान को हम सीधे से लगाए हुए हैं, कुरान के बारे में नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है। सोचिए, इसी वजह से कुरान में तर्जुमा रखा है कि हम कुरान को समझ के पढ़ सकें। कितनी मरतबा कुरान में खत्म किया, 1000 मरतबा, 2000 मरतबा, 3000 मरतबा। अल्लाह कह दे दो थोड़ा सा। अब देखिए अल्लाह ने क्या कहा, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और उनसे भलाई से बात करो, अच्छी से बात करो, नरमी से बात करो। आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कहा वलियख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, उन्हें चाहिए कि डरे इस बात से। देखिए माहौल देखिए, ये मीटिंग बैठी हुई है और जायदाद तकसीम हो रहा है, ठीक है, माहौल को समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आए, समझ में आएगी। वलियख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन, तकसीम चल रहा है, एक यतीम बच्चा चला है कूद कर। अब हम लोग थोड़ा सा रोक, मीटिंग को रोक देते हैं, हमें क्या बात है, ताकि हम चाहते हैं ना कोई ना जाने क्या बातचीत हो रही है, तो हम फला काम से अम्मी कुछ मांगी, क्या यतीम है। एक भाई के जहन में आयत थी, कहा भाई इसको भी कोई हिस्सा नहीं, बहुत परेशान, किराए का मामला है, हर महीना इलेक्ट्रिक का मामला, कहते हैं कोई हम लोग जमीन पे देंगे घर